दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 अर्बन लिवलीहुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा होने वाला है अपनी सिविक्स की बुक का एकदम लास्ट चैप्टर। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं रीड कर देता हूँ, फिर आप उनके आंसर बताइएगा। What do you see in this illustration? आपको इसमें क्या दिख रहा है? You have already read about the work that people do in rural area. अपन ये पढ़ रखा है। Now compare the work that people in illustration are doing with the work that people do in rural area. Some part of the city are different from other. सिटी के कुछ पार्ट डिफरेंट हैं दूसरे से। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन दिस? आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? क्योंकि मैं एक बार आपको ये पूरा पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके। There are more than 5,000 towns, 27 big city in India. इंडिया में ऐसा बिग सिटी लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोटा है। मोर देन a million people live in working here. वहाँ लोग रहते हैं मिलियंस में। They say the city never sleeps. कभी सोती नहीं है। Let city one find out about the work people do in the city. क्या करते हैं लोग? Are they employed by someone? Are they self-employed? How do they organize themselves? And do they have similar employ and earning opportunities? देखते हैं। Working on street. This is a city where my cousin lives. ये वो सिटी है जहाँ मेरी कजिन रहती है। I have been here only a few times. मैं कुछ समय के लिए आई हूँ। It is very big. वो बहुत बड़ा है। Once where I came here, my cousin took me around. लेके जाती है। We left the house early in the morning. छोड़ दिया उन्होंने early in the morning में। As we turned the corner into the main street. जब वो main street में, we saw that it was already buzzing with activity. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी ऑलरेडी। The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrot and cucumber in basket. अरेंज करने में बिजी था at her stall so that people could see what she had to sell. उसे क्या सेल करना है लोगों को पता चले। Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kind of flower. वहाँ पे हर तरीके के फ्लावर बेच रही थी। We bought two red rose and a yellow rose. हमने एक लाल रोज खरीदा, एक पीला। On the payment opposite we saw a person selling newspaper. एक न्यूज़पेपर बेच रहा था। With a small crowd of people. छोटे से क्राउड में people के around him. Everyone wanted to read the news. Busy whisked past and there were auto rickshaw filled with school children से भरी हुई थी। Nearby under a tree a cobbler sat taking his stool and material out of a small tin box से निकाला। Next to him a roadside barber had been his work. उसका वर्क कर रहे थे। He already had customer who wanted to early morning shave. जिन्हें अर्ली मॉर्निंग में शेव चाहिए थी। A little way down the road a woman have pushing along a cart with all kind of plastic bottle boxes, hairpin clips, etc.
In the while, another person on a cycle has carrying vegetable to sell to people in their house. बेचने के लिए. We came to a place where rickshaws were standing in a row. वहाँ वो पहुँचे. Waiting for customer, we decided to take one of market, which was about 2 kilometers down the road. जो 2 किलोमीटर दूर था. बच्चू मांझी, अ साइकिल रिक्शा पुलर. अब यहाँ पे भी एक कहानी दे रखी है, इसके ऊपर से. I come from a village in Bihar where I worked as मैसून. जब वो मैसून के काम करता था. My wife and 3 children live in village. वहाँ रहता है विलेज में. We don't own land. उनका पास कोई लैंड नहीं विलेज में. I did not get monsoon work regularly. उसे रेगुलरली वर्क नहीं मिलता. The income that I earned was not enough for our family. हमारी फैमिली के लिए इनफ नहीं है. After I reached the city, जब मैं सिटी आया, I bought an old cycle rickshaw and paid it in installment. वो पे करने लगा. This was many years ago. ये बहुत साल तक चल रहा है. I come to bus stop every morning and take a customer wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. 8:30 से इवनिंग का काम. I take ride up to 6 kilometer in the surrounding area. 6 kilometer तक वो राइड लेता है. Each customer gave me ₹10 से 30 per trip depending on the distance. Distance पे depend है. When I can't do this work, so on those days I don't earn anything. जब मैं ये काम नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं कमा पाता. I stay with my friend in a rented room. Rented room में रहते हैं. They work in a nearby factory. फैक्ट्री में काम करते हैं उसके दोस्त. I earn between ₹200 से 300 के बीच में every day, out of which I spend ₹100 to 150 on food and rent. इतना वो रेंट और फूड पे खर्च करता है. द रेस्ट सेव माई फैमिली. और बाकी वो अपने फैमिली के लिए भेज देता है. आई विजिट माई विलेज टू 1-3 टाइम ऑफ ईयर टू सी माई फैमिली. अपनी फैमिली को देखने के लिए. थॉट माई फैमिली सर्वाइव ऑन माई मनी. कि मेरी फैमिली मेरे मनी दिए गए भेजे गए मनी पे सर्वाइव कर रही है. आई सेंड माई वाइफ ऑल्सो अर्न्स फॉर एग्रीकल्चर वर्क. शी गेट्स वन इन अ वाई. उसे कभी कभी एग्रीकल्चर वर्क में काम मिल जाता है. यहाँ और क्वेश्चन है. Why did बच्चू मांझी कम टू द सिटी? वो सिटी क्यों आया? What can't बच्चू मांझी live with his family? मतलब वो क्यों नहीं रहता था? Take a vegetable vendor and find out how the work they pay, preparing of purchasing, selling. बच्चू मांझी has think twice before taking a day off from work. वो क्यों नहीं लेना चाहता कभी भी ऑफ? Why? Like बच्चू मांझी, a large number of people in the city work on the street in survey of अहमदाबाद के cities was found that 12% of all the work in the city were people working on the street. 12% लोग स्ट्रीट पे काम कर रहे थे. Sometimes sell things to repair the और प्रोवाइड सर्विस. दूसरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन. खुद का काम करते, किसी के लगाए गए नियम. दे आर नॉट एम्प्लॉय बाय एनीवन एंड दे वो हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क. खुद अपने वर्क का ऑर्गेनाइज करते हैं. दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप. ये भी उनको खुद ही करना पड़ता है. The shop are usually temporary structure. Temporary structure की होती है. Sometimes just some board or paper spread over the yard. बिछा लेते वो
boxes, maybe a canvas sheet hung up on a few floors. They have also used their own cart or simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked to disband their shop at any time by the police. कभी भी पुलिस उनको कह देती है चल लो यहाँ पे ट्रैफिक वो करो. दे हैव नो सिक्योरिटी, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं. दे आर सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी वर दीज हॉकर आर नॉट अलाउड टू एंटर. ऐसे भी कुछ जगह है इनको अलाउ नहीं करता आना. Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean, short and make them ready to sell. Sell के लिए बनाते. For example, those who sell food or snack on the street prepare most of these on home. वो ज़्यादातर अपने घर पे बनाते हैं. There are almost 1 crore street vendor of the country working in urban area. अर्बन एरिया में काम करते. स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड ओपन ओनली ऑन obstructing to traffic and people walking. Traffic of people walking. However, with the effort of many organizations, कुछ organization के effort से it is now recognized as general benefit and as right of people to earn their livelihood. तो उनको भी right अपनी livelihood earn करने का. The government is thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have a place to work and that there is also free flow of traffic and people. तो ट्रैफिक की भी दिक्कत नहीं होगी और जो ये है वेंडर्स इनको भी दिक्कत नहीं. हॉकिंग जोन हैव बीन सजेस्ट फॉर टाउन्स एंड सिटीज. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. कि मोबाइल वेंडर जो है उसको भी फ्रीली घूमने का वो है. हॉकर नीड टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. उन्हें भी कम्युनिटी का पार्ट मानना चाहिए. दैट आर सेट अप टेक दिस एंड ऑफन दिस इज रिलेटेड टू दैम. डिस्कशन रिलेटेड टू दैम. In the market, when we reached the market, the shop were just being to open हुई थी, but the place was already crowded. लेकिन जो जगह थी वो already crowded थी because the festival season की वजह से. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. ये सब बेच रहे थे. There was a डेंटिस्ट क्लीन थी ऑल्सो एट वन एंड. एक एंड पे. माई कजिन हैड अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट. उसने डेंटिस्ट से बात कर रखी थी. ही वॉन्ट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न. उनको अपनी टर्न मिस नहीं करनी थी. वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड. जब तक उसे अंदर ना बुलाए. द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. उनके रात में cavity. My cousin was scared because she thought the process would be painful. वो painful हो सकती है process and was upset that she had allowed her teeth to be bad. कि उसने अपने दांत को सड़ने दिया. From the gentle clean she took me a new गारमेंट शोरूम में लेके गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ खरीदने थे. शोरूम हैड 3 फ्लोर थे. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ थे. वी वॉन्ट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ फॉर गर्ल्स वर केप्ट. जहाँ लड़कियों के लिए कपड़े रखे गए थे वो वहाँ पहुँचे. हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन. अब ये हरप्रीत और वंदना है बिजनेस पर्सन. माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप में वर्क करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड वन संडे माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप. मैं हेल्प करते थे.
I started working there only after I completed my college. मैं वहीं काम करता था जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, ये हरप्रीत कह रहा है. We opened his showroom some year ago. उन्होंने अपना शोरूम कुछ साल पहले ही खोला. I am a dress designer. मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ. Our business has changed. हमारा बिजनेस चेंज हो गया. These days people prefer to buy ready-made clothes. अब आजकल लोगों को रेडीमेड क्लोथ से ज़्यादा पसंद है, rather than have them stitch, मतलब खुद सिलवाने से. They trend these days for रेडीमेड गारमेंट. वो रेडीमेड गारमेंट लाते. यू ऑल्सो नीड टू अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम. उन्हें एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी करना पड़ता है. वंदना कह रही है फॉर द शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग चीज़ जगह से वो लाते हैं अपने शोरूम के लिए. वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मुंबई से ख़रीदा उन्होंने ज़्यादातर मटेरियल. अहमदाबाद, लोधना एंड त्रिपुर. सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन नियर दिल्ली. वी गेट सम ड्रेस आइटम फॉर इन कंट्री. दूसरी कंट्री से के सामान भी मिल जाते. देयर आर सेवरल थिंग वी नीड टू डू टू द रन ऑफ शोरूम प्रॉपर्ली. करने पड़ते हैं. वी एडवाइज अ वेरियस न्यूज़पेपर. उन्हें अपने न्यूज़पेपर में लिखवाने पड़ते हैं. सिनेमा थिएटर में अपना ऐड देना पड़ता है. टेलीविज़न एंड रेडियो चैनल्स इनमें. करंटली द बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट. अभी तो बिल्डिंग जो हमारी है वो रेंटेड है, लेकिन जल्दी हम इसे खरीद लेंगे. एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट ऑफ पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस. अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है क्योंकि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये मेन मार्केट बन गया. वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट ऑफ अपार्ट कॉम्प्लेक्स नियर बाय. वो बाय करने की सोच रहे हैं और उन्होंने एक मिनट, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं वापस से. Why did Harpreet and Vandana start a showroom? What do they have to the showroom? तो आपको इसका बताना है. Talk to shop owner in a market and find out he plan his work. Have there been a change in business in the past 20 years? What are difference between those who sell on street and those in market? तो आपको डिफरेंस बता सकते हो आप. एक टेबल बना के भी बता सकते हो आप. लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप. खुद की शॉप ओन करते हैं इन वेरियस मार्केट आवर ऑफ द सिटी में. दिस शॉप में बी स्मॉल और लार्ज एंड सेल डिफरेंट थिंग्स भी बेचती है. मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप ऑफ बिजनेस. खुद मैनेज करते. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन. किसी ने एम्प्लॉय नहीं किया, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर एज सुपरवाइजर. उन्हें दूसरों को हायर करना पड़ता है. एंड हेल्पर्स को. दे आर परमानेंट शॉप दैट आर गिवन लाइसेंस टू डू बिजनेस. उनके पास लाइसेंस होता है बिजनेस का by the municipal corporation. The municipal corporation also decided on which day the week in the market remain closed. ये भी डिसाइड रहता है कि कौन से वीक में मार्केट क्लोज रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द शॉप ऑफ अबव मार्केट आर क्लोज वेडनेसडे. जो अभी अपन ने हरप्रीत और वंदना की वो पढ़ी तो वो वेडनेसडे को क्लोज रहती है. दिस मार्केट ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिस एंड शॉप दैट प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंक सर्विस एंड अदर. In the factory workshop area, I wanted to have zari work done on my dress which I need for a special occasion. मुझे ये स्पेशल ड्रेस चाहिए थी
ओकेजन के लिए। माई कजिन सेड दैट शी न्यू निर्मला को जानती हु वर्क इन गारमेंट फैक्ट्री, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला नेबर डू ज़ारा वर्क एंड एम्ब्रॉयड का काम करती है। So we caught a bus and headed towards the factory area. तो वो फैक्ट्री एरिया में पहुंच गए। The bus was really crowded at every stop. बहुत crowded थे हर स्टॉप पे। More and more people got on and hardly anyone seemed to get off. Hardly कोई बाहर निकल पा रहा था। People were pushing others to make more space from themselves. एक दूसरे को पुश कर रहे थे। My cousin guided me and to a corner so that we would get swash. I wonder how people travel like this every day. कैसे लोग पूरे जो रोज उसमें ट्रैवल करते हैं कैसे करते होंगे। As the bus entered the factory area, people started getting off. फिर लोग उतरने लगे। We also got off soon at a crossing. क्रॉसिंग पे उतर गए। What relief that was. मतलब उनको क्या आराम मिला। There were a large number of people sitting on railing on group at the crossing. बैठे हुए थे। They seemed to waiting for someone. उन्हें लग रहा था कि वो किसी की वेट कर रहे हैं। Some group of had people standing by and talking with them. टॉक कर रहे थे। My cousin explained that this place was called Labor Chowk. इसे लेबर चौक कहते हैं। These were daily wage laborers who work as helpers to Mosul. हेल्पर्स के रूप में काम करते हैं। They dig at कंस्ट्रक्शन साइट खोदते हैं। ये देखिए ऐसा सीन है। Lift, load and unload truck in the market, dig pipelines and telephone cable and also build road. ये सब बनाते हैं। There are thousands of such casual workers in the city. Thousands of लोग ऐसे। We entered the factory area to find full of small workshop. Small workshop देखते हैं। There seemed to be endless rows of them. Endless rows दिख रही थी उनको। In one section we saw people working on a small room on sewing machine. Sewing machine में काम कर रहे थे छोटे से रूम में। Where cloth was being stitched. Cloth stitch किया जा रहा था। One person opposed one sewing machine. एक बंदे के पास एक sewing machine थी। Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. एक साइड पे थे रूम के। We located निर्मला switching unit. उन्हें निर्मला मिल गई। She was happy to meet my cousin. वो मेरी कजिन से मिलके खुश थी। And promised to get सारी work done on my dress. कर देगी। निर्मला work as a tailor in export garment. एक्सपोर्ट गारमेंट में वर्क करती है। Unit. The factory where she works makes swimmer clothes to people of foreign countries के लिए बनते like USA, UK, Germany and Netherlands workers. Like Nirmala have to work every long hour in month from December to April. दिसंबर से अप्रैल वो वर्क करते हैं। नॉर्मल वर्किंग डे being at 9 AM and finished only by 10 PM. तो 9 AM से चालू होता है और 10 बजे तक चलता है। आप भी सोचिए। Sometimes ever later she works on 6 days a week. 6 दिन काम करती है। At time when the work need to be done urgently, जब अर्जेंटली काम करना पड़ता है। She works on Sunday. संडे को भी वर्क करना पड़ता है टू। निर्मला इज पेड ₹280 a day for 8
आवर्स 8 आवर्स के लिए ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट वर्क करे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं. बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ. फिर वो अपना स्टाफ कम करने लगते हैं. निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव. उसे भी लीव के लिए कहा जाता है. फॉर अबाउट 3 or 4 months in the year there is no work for her. 2-4 महीने के लिए उनके पास कोई काम नहीं होता. मोस्ट वर्क लाइक निर्मला आर एम्प्लॉय ऑन वॉट इज नोन एज कैजुअल. रखा जाता है. बेस they are required to come and when the employer need them. They are employed when the employer get large order. जब उन्हें लार्ज ऑर्डर मिलता है उन्हें बुला लेते हैं. और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, कुछ सीजन में. एट अदर टाइम एट द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क. तो उस टाइम में उनको कोई दूसरा वर्क ढूंढना पड़ेगा. जॉब लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट. निर्मला जैसी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होती. इफ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्क्ड टू लीव. कि नौकरी छोड़ दो. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट. अगर वो इल हो जाए ट्रीटमेंट चाहिए तो कोई वो नहीं उनके लिए. दे आर ऑल्सो एक्सेप्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर. उनसे एक्सेप्ट किया जाता है तब भी कि वो लॉन्ग आवर तक वर्क करे. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट द वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच लास्टिंग 12 आवर कोई करेगा, 12 आवर कोई करेगा. 1 वर्क ऑन द मशीन 12 आवर्स 12 घंटे तक एंड देन रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स. अब वापस से क्वेश्चन. Why did think a small workshop or factory employ casual workers? Describe the work of condition of people like Nirmala keeping in mind following work or condition in the workplace, earning and the day of work available. Would you say that domesticate work like housemen are also casual workers? Why describe the work day of woman? Detail the work she does not other people houses. Working in call center, a new employment in the big city. A call center is a centralized office that deal with problem and question of consumer customer have regard goods purchase and service like banking, ticket booking. इस सब के लिए call center are generally set up a large room with work of station that include computer. जिसमें कंप्यूटर होते, टेलीफोन होते, set on station. India has been a major center not only for Indian companies but also foreign companies. They set up call center here as they can get people who can speak English and will work for lower wages. जो lower wages के लिए काम कर सके. In the office area, my aunt Sudha work on marketing manager. वो marketing manager के रूप में काम करती है. She had asked to reach her office from 5:30 p.m. He thought we did get late, so we took a auto rickshaw that managed to get there just in time. टाइम पे पहुंचा देगा. मतलब वो 5:30 से पहले आ जाए. उनकी आंट ने उनसे कहा कि रिक्शा पकड़ ली. फिर ऑफिस वॉज इन सराउंडिंग बाय टॉल बिल्डिंग के सराउंडिंग में था. देयर वर 100 of people coming out. वो 100 से ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे थे. Some headed for car park while other went towards the row of buses. My aunt is marketing manager in company which manufacture
बिस्किट्स, जो बिस्किट्स के मैन्युफैक्चर। द फैक्ट्री व बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी। शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 स्लैव पर्सन्स। इतने का वो सुपरवाइज करते। हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। उन्हें सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना पड़ता है। दे कैन ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम। उनसे पेमेंट कलेक्ट करना पड़ता है। शी हैड डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन एंड वंस अ वीक शी मीट द सिलेक्शन ऑफ ईच रीजन। हर रीजन के स्लेपर से वो मिलती है। शी चेक द प्रोग्राम रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम दे फेस। डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम वे फेस कर रहे हैं। शी हैज़ टू प्लान द स्लैब एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट and travel to different places. She had a regular salary every month and permanent work with the company. Permanent work करे वो। She can accept in her job to continue for a long period of time. वो long period of time तक कर सकते। Being permanent worker, she also get other benefits such as following. उन्हें benefit भी मिलते हैं। कैसे? सेविंग फॉर ओल्ड एज। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कैप्ट इन अ फंड। एक फंड में डाल दिया जाता है विद द गवर्नमेंट के। शी विल अर्न एंटायर ऑन दी सेविंग। जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब वो इन सेविंग्स से जी सकते। व्हेन शी रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब शी विल गेट मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट। मतलब वो उस पर जिंदा रह सकते हैं। हॉलीडे, शी गेट्स ऑफ संडे एंड नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे की छुट्टी मिलती है और संडे की छुट्टी भी मिलती है। शी ऑल्सो गेट सम डे ऑफ एनुअल लीव भी मिलती है। मेडिकल फॉर हर फैमिली आर कंपनी पेज अ मेडिकल एक्सपेंस अप टू सर्टेन अमाउंट पे करती है। अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर। She get medical leave if she fall ill and salary is not cut if she take this leave. मतलब अगर वो बीमार है तो वो छुट्टी ले सकती है और उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी। There are many workers in the city who work in office, factories and government departments where they are employed are regularly and permanent worker. परमानेंट वर्कर है वो। They attend the same office or factory regularly. The work is clearly identified. They get a regular salary unlike casual workers. They will not be asked to leave if the factory does not have much work. उनको नहीं कहा जाता कि छोड़ दो। At the end of day we got into my aunt car. वो आंट जब दिन ख़त्म हो गया वो आंट की कार में गए। एक्साइट बट इट हैड बीन सो मच फन। लेकिन आज उनको मज़ा आया। एंड आई थॉट माई हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। दे हैव प्रॉब्लम्स नेवर मीट ईच बट इट इज़ देयर वर्क एंड टाई देम टुगेदर एंड हेल्प टू मेक अप अ सिटी लाइफ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमारी सिविक्स की जो बुक थी उसका ये लास्ट चैप्टर था। तो ये हमारी जो सिविक्स की बुक है ये ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।